In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Miss Rabia here, and I welcome you in the series of all subject lectures based on single national curriculum. Here in this video, you will get the solved exercise of Unit 7, A Fit and Healthy Life of English Class 5. पार्ट ए ओरल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, हम ओरल कम्युनिकेशन में साउंड्स सीखते हैं इस पार्ट ए में हर चैप्टर के लास्ट में। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, रीड द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स विद देयर वर्ड्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या है? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 लेटर्स मेक अ साउंड दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ठीक है, ये वर्ड के स्टार्ट में भी आते हैं, दरमियान में भी और लास्ट में भी। रीड द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स विद देयर वर्ड्स। इस टॉपिक में हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को इनिशियल पोजीशन पे भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि 2 लेटर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कौन से हैं और 3 लेटर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट वी विल रीड द 2 लेटर्स कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। 2 letter consonant clusters are bur, full. Bur as in brush, bur as in bread, bur as in brain, and full as in floor, as in flower, as in fly. Now see 3 letter consonant clusters. Stir, splash, splendid, spill as in split, and stir as in street, as in straw, as in stream. Okay. Now we will see the consonant clusters in final position कि वर्ड के लास्ट में consonant clusters कौन से यूज़ होते हैं। पहले हम 2 letter consonant clusters देखेंगे, then 3 consonant clusters देखेंगे। LP, lip, help, as in pulp, as in gulp. Now SK, sk, flax, sk, as in ask, sk, as in desk. Now 3 letter consonant clusters are FTS, fts, as in gifts, as in crafts, as in drafts. They are coming at final position. The next one is MPT, mipt, attempt, prompt, contempt. Now we have an activity related to consonant clusters. Read the given sentences, underline the words with consonant clusters and write them in their columns. इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, फिर हम जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के साथ हैं उनको अंडरलाइन करना है और फिर करेक्ट कॉलम में लिखना है। जैसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल पोजीशन, अगर उस वर्ड में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इनिशियल पोजीशन में यानी कि पहले आ रहे हैं, वर्ड के स्टार्ट में आ रहे हैं तो उस कॉलम में लिखेंगे, और अगर फाइनल पोजीशन यानी कि वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन फाइनल पोजीशन वाले कॉलम्स में हम इनको लिखेंगे। ठीक है। सेंटेंसेस आर ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। कॉन्सोनेंट क्लस्टर ब्रश। नेक्स्ट वन इज सारा शोड मी सम स्प्लेंडेड क्राफ्ट्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर स्प्लेंडेड and crafts. There are 2 consonant clusters in this sentence. Next one is they attempted to cross the stream. Again, this sentence is having 2 consonant clusters, attempted and stream. Next one is he asked Dr. Harun to question about germs. Asked, consonant cluster. Okay. You should help him in watering these flowers. There are 2 consonant clusters, help and flowers. Now we have to put these consonant clusters in their columns. Consonant clusters in initial position के कॉलम में आप लिखेंगे brush, flower, splendid, stream.
ठीक है। इनिशियल पोजीशन यानी कि ये वर्ड के शुरू में आ रही हैं, ठीक है। BR, SP, FL, ST, ये सारे इनिशियल पोजीशन पे आ रहे हैं। फिर है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन फाइनल पोजीशन के वर्ड के आखिर में कौन से कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं, ये देखिए। हेल्प, LP, क्राफ्ट्स, आस्क्ड, अटेम्प्टेड, ये फाइनल पोजीशन पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आ रहे हैं। लर्निंग टू स्पीक, read and practice the given dialogue. Maham, hello Sidra, how are you? Sidra, not so great. Speaks with low voice. What about you? Maham, I am fine, but what happened to you? You were absent yesterday. Sidra, I had fever 2 days ago. I have recovered now, but I still feel weakness. Maham, you should take care of your health. Eat healthy diet and drink plenty of water. Did you see a doctor? Sidra, yes Maham. He gave me some medicines. I will be better soon. Maham, Inshallah, Mashallah. Allah bless you with health. Sidra, thank you, Inshallah. Now, activity is arrange a debate competition about healthy and unhealthy food. कि मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा पर एक जो है मुबाहसे का मुकाबला तरतीब दें। स्टूडेंट्स, अगर आपको टीचर्स ये कंपटीशन और डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करवाती हैं और आपको कोई डिबेट देती हैं, उसमें अगर आपको इशू आए तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगी। लेट्स स्टार्ट पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दीज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड स्कूल इनवाइट डॉक्टर हारून? स्कूल इंतज़ामिया ने डॉक्टर हारून को क्यों दावत दी थी? आंसर इज़ द स्कूल हैड इनवाइटेड डॉक्टर हारून टू टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन मैटर्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट कोविड-19। स्कूल इंतज़ामिया ने डॉक्टर हारून को ज़ाती हिफ़्ज़ाने सेहत के मामलात के मुतल्लिक बातचीत करने और कोविड-19 के मुतल्लिक आगाही देने की दावत दी थी कि वो बच्चों को आएँ और बताएं। What did Dr. Haroon tell the children about keeping personal hygiene? डॉक्टर हारून ने बच्चों को ज़ाती हिफ़्ज़ाने सेहत को बरकरार रखने के मुतल्लिक क्या बताया? Dr. Haroon told the children to wash your hands for 20 seconds, wear mask and keep distancing. डॉक्टर हारून ने बच्चों को बताया कि 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं, मास्क पहनें और फासला रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज जंक फूड अनहेल्दी? डिस्कस। ठीक है, जंक फूड क्या है? जो आप शॉप से लेकर खाते हैं, लेस, बिस्किट्स, बाहर बाजार की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं। ओके, जंक फूड इज़ अनहेल्दी एज इट मेक्स यू लेज़ी। It gives you a lot of problems related to the heart, liver, eyes and brain. ठीक है, जंक फूड जो है गैर सेहत बख्श हैं और आप सुस्त हो जाते हैं, आपके दिल, जिगर, आंखों और दिमाग वगैरह से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल जो हैं इनकी वजह से पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स क्या हैं? An inflectional ending is a letter or group of letters added to the end of a word to change its form. Inflectional endings क्या हैं? कुछ लेटर्स होते हैं एक हो सकता है, 2 लेटर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लेटर्स जो हैं किसी भी वर्ड के एंड पे जब ऐड किए जाते हैं उस वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है ना, किसी भी वर्ड की फॉर्म चेंज करने के लिए वर्ड के एंड पर जो ऐड किए जाते हैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स वो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एस हो गया, अक्सर हम कुछ वर्ड्स के एंड पे एस लगा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म चेंज हो जाती है, प्रेजेंट फॉर्म में आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर ई एस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के एंड पे हम
लगाते हैं तो फॉर्म चेंज हो जाती है। सम टाइम हम किसी वर्ड के लास्ट पे ING ऐड करते हैं तो वो इंग फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर हम कुछ वर्ड के एंड पे ED ऐड करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। अब हम इसमें इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स को के यूज़ को देखते हैं, गौर करते हैं, फिर इसी से रिलेटेड हमने एक्टिविटी करनी होगी, इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। लुबना एंड हर क्लासमेट वर वेरी एक्साइटेड अबाउट डॉक्टर हारून्स विजिट। अब इसमें जो वर्ड है एक्साइटेड, इसके एंड पे डी जो है ऐड किया गया है। डी क्या है? इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है, ठीक है। वैसे एक वर्ड एक्साइट अलग से एक वर्ड है, लेकिन डी यूज़ कर देंगे तो ये एक्साइटेड पास्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन वर वेयरिंग मास्क। बच्चे मास्क पहन रहे थे। तो वेयर इज़ अ वर्ड, इसके एंड पे हम जब ING यूज़ कर देंगे तो ये प्रेजेंट तो ये कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इंग फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज सना ऑलवेज ईट हेल्थी फूड। ईट्स में देखें ईट वर्ड है, S यूज़ करेंगे तो ईट्स आएगा। ईट्स देखें सना यूज़ हो रहा है स्टार्ट में। सना इज़ अ सिंगल नाउन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल है कि जब सिंगल नाउन वर्ड के स्टार्ट में यूज़ होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने S लगाया, ES इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ईट का लास्ट लेटर T है। अगर वर्ब के लास्ट लेटर्स जो हैं SH, S, CH, X, O, अगर वर्ड के लास्ट लेटर्स इनमें से कुछ होते तो हम ES यूज़ करते, ठीक है। नेक्स्ट इज सारा ऑलवेज वॉशेज हर हैंड्स विद सोप। अगेन नाउन, सेंटेंस के स्टार्ट में नाउन है तो ये वॉशेज ES यूज़ किया गया। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग क्या है? ES, ठीक है। वॉश के एंड पे SH था। मैंने अभी आपको बताया कि रूल है कि अगर वर्ब के एंड पे SH, CH, X, S हो या O हो तो हम ES यूज़ करेंगे, वरना S यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगल है, सिंगुलर नाउन है। ठीक हो गया। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है, मेक 3 वर्ड्स विद द गिवन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स इन योर नोटबुक। हमारे पास क्या है? S है, ES है, ING, ED। ये हमारे पास क्या है? ये सारे इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स हैं ये, ठीक है। इनके साथ हमने क्या करनी है? वर्ड्स ऐड करके वर्ड्स बनाने हैं। 3 वर्ड्स बनाने हैं। सबसे पहले है S, फ्लावर्स के एंड पे आप S लगा देंगे तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। कैप के एंड पे S लगाएं तो कैप्स हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। मेक वर्ब है, इसके एंड पे आप S लगा देंगे तो ये मेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल्स S के साथ। अब हम ES के साथ 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं। गो के साथ ES यूज़ करेंगे तो गोज हो जाएगा। वॉच के साथ हम ES यूज़ करेंगे तो वॉचेस हो जाएगा। फिर डिश के साथ हम ES ऐड करेंगे तो डिशेस हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग हम कर रहे हैं। अब बारी आती है ING, इंग फॉर्म भी इसको कहते हैं और कंटिन्यूस टेंस में ये यूज़ होती है। ये जहाँ भी यूज़ हो रही हो आप समझ लें कि ये कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है, जारी काम को शो कर रहा है। अच्छा, प्ले इसके साथ ऐड करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। कोई भी वर्ब इसके साथ ऐड कर दें आप, से, सेइंग, जंप, जंपिंग। ओके, नेक्स्ट इज ED। वॉश के एंड पे आप ED यूज़ करेंगे तो वॉश्ड हो जाएगा। कुक के साथ ED यूज़ करेंगे तो कुकड हो जाएगा। मार्क के साथ ED यूज़ करेंगे तो ये मार्क्ड हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स 3 हो गई इसके साथ। नेक्स्ट है रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स। अ कंपाउंड वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more words that produce a word with a new meaning। जी, कंपाउंड वर्ड क्या है? एक वर्ड है, ठीक है ना। इसके साथ कंपाउंड वर्ड वो होता है जिसमें 2 वर्ड्स ऐड होते हैं या 2 से ज़्यादा वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वर्ड का न्यू मीनिंग, वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, एक नया मीनिंग बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स में देखें
हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, वर्ड 1, वर्ड 2 एंड कंपाउंड वर्ड्स की एग्जांपल भी हैं। अब वर्ड 1 हमारे पास है सन, ठीक है, हमारे सन क्या है, एक वर्ड है। फिर वर्ड 2 में देखें एक और वर्ड है लाइट, ठीक है, लाइट भी एक वर्ड है। जब हम सनलाइट को इकट्ठा लिखेंगे तो ये कंपाउंड वर्ड हो जाएगा सनलाइट, ठीक है। दो वर्ड से मिलकर एक जो वर्ड बना वो क्या है, कंपाउंड वर्ड। फिर हमारे पास वर्ड 1 में है हेड और वर्ड 2 में है एक, ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड हमारे पास क्या बन गया, हेडेक। नेक्स्ट इज बेड और एक वर्ड है हमारे पास रूम, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो बेडरूम कंपाउंड वर्ड बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड विच इज मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स, ओके, जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना हो। टूथ ब्रश, टूथब्रश। एक वर्ड है प्ले और है ग्राउंड, तो ये दोनों मिलकर एक वर्ड बनाएंगे प्लेग्राउंड। अब हमारे पास कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड एक्टिविटी है। क्वेश्चन 5, मैच द गिवन वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स विद एंड राइट देम इन द गिवन ब्लैंक्स। कॉलम ए, कॉलम बी एंड कंपाउंड वर्ड्स। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं, कॉलम बी में कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आपस में सही वर्ड्स के साथ मैच करके हमने कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। बटर को हम मैच करेंगे फ्लाई के साथ तो ये बन जाएगा कंपाउंड वर्ड बटरफ्लाई। नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रॉ, इफ यू विल मैच द स्ट्रॉ विद बरी it will become a strawberry. Next word is extra, if you will match this word with ordinary so it will make a compound word extraordinary, okay. And the next one is rain, if you will match the rain with the bow it will become a new word rainbow. Next question is read the lesson again and fill in the blanks with the correct option. The school invited a carpenter, judge, lawyer, doctor. Correct option is doctor. The students were wearing dash during the doctor's visit. ठीक है, डॉक्टर्स के विजिट के दौरान स्टूडेंट्स ने क्या पहना हुआ था, ग्लव्स, कराटे सूट, कलरफुल ड्रेसेस. Correct option is masks. We should wash our dash with soap for 20 seconds. Feet, head, face, hands. Correct option is hands. Never take medicine on an empty dash. Hand, head, mouth, stomach. Correct option is stomach. Dash food keeps us strong and fit. Junk, healthy, dirty, unclean. Correct option is healthy. Let's begin part C. Language focus. Read the given words with their meanings. Hygiene, to keep yourself and your environment clean. हिफ्ज़ाने सेहत का इल्म, ओके. Prevent, बचाना, to stop something from happening. Viral, caused by a virus. Germs, microbes that cause infection. Plenty, enough, काफ़ी, कसीर. Homophones, हम आवाज़ अल्फाज. रीड द गिवन होमोफोन्स एंड देयर यूज़. ठीक है, होमोफोन्स और इनका इस्तेमाल देखते हैं. होमोफोन्स क्या हैं, हम आवाज़ अल्फाज, ठीक है, जिनकी साउंड्स एक जैसी होती हैं लेकिन स्पेलिंग्स उनके चेंज होते हैं. फर्स्ट होमोफोन इज़ राइट, RIGHT, राइट, जिसका मतलब है दुरुस्त, ठीक है. और दूसरा हमारे पास राइट है WRITE, राइट, जिसका मतलब है लिखना, ठीक है. देखिए दोनों की साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग जो है वो चेंज हैं. अब इनका यूज देखें. यू गेव देयर राइट आंसर, यू गेव द राइट आंसर, ओके, एंड ही हैड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्दी फूड. नेक्स्ट वन होमोफोन इज मीट एंड मीट. MEAT, मीट, मिलना. दे विल मीट यू सून, वो आपसे जल्दी मिलेंगे.
एंड द नेक्स्ट वन इज MEAT मीट, इसका मतलब है गोश्त। अली लाइक्स टू ईट रेड मीट, अली सुर्ख गोश्त खाना पसंद करता है। BREAK ब्रेक, वक्फा, आई नीड अ ब्रेक, मुझे वक्फा की ज़रूरत है। BRAKE ब्रेक, ठीक है, गाड़ी की ब्रेक लगाना या बाइक वगैरह की। He had to put on the brakes to avoid an accident. ATE ate, खाया, पास्ट फॉर्म है, ठीक है, ईट की। They ate a lot at dinner. Okay, they ate a lot at dinner. उन्होंने रात के खाने में बहुत ज़्यादा खाया। 8 EIGHT 8 8, Sarah is 8 years old. Week, WEEK week, हफ्ता, there are 7 days in a week. Week, WEAK week, कमज़ोर, his child is getting weak. Now fill in the blanks with the correct homophones. I saw SUN sun rise with my SON sun. Okay, फर्स्ट वाले में SU वाला सन और सेकंड वाले में SON सन, बेटा। I allowed to read the given text aloud? पहले वाले में ALLOWED और सेकंड वाले में ALOUD, ठीक है। मरियम had bought FOUR 4 new dresses FOR for her daughter. One of my school team won the cricket match. फर्स्ट वाले में ONE1 और सेकंड वाले में WON1. I want to add more information in the newspaper. Add. Now use the given homophones in your sentences. फेयर, एक फेयर का मतलब है किराया पहले वाले का, और दूसरे वाले फेयर का मतलब है मुंसिफाना। वेट, इंतज़ार करना, और दूसरा वेट है वज़न। सन, सूरज, दूसरा सन का मतलब है बेटा। होल, मुकम्मल, और दूसरे होल का मतलब है सुराख। HEAR हियर, सुनना, और HERE हियर, यहाँ पे, ठीक है। Now we will use them in the sentences. Fare, किराया, Ali paid the fare of bus. FAIR fare, मुंसिफाना, he is famous for his fair dealing. Okay. Wait, इंतज़ार करना, I am waiting for bus to go to school. Weight, वज़न, you must do exercise to lose your weight. To lose your weight. Okay. Sun, सूरज, the sun rises in the east. Son, बेटा, Ali is my elder son. Whole, मुकम्मल, the teacher invited the whole class. Hole, सुराख, there is a hole in the wall. Here, सुनना, I can hear you clearly. Here, यहाँ, I have planted plants here. Learning to spell. अनस्क्रैम्बल दी वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग, अल्फाज को सुलझाएं और स्पेलिंग याद करें। KUNG, जंक, इनको जब करेंगे, सुलझाएंगे, अरेंज करेंगे तो जंक बनेगा। नेक्स्ट इज EALHTH, इनको अरेंज करेंगे तो हेल्थ बनेगा। नेक्स्ट इज ISITV, अरेंज देम, इट विल बिकम विजिट। Next is TAFER, it will become after. OAPS, इनको अरेंज करेंगे तो सोप बनेगा। HASW, इनको अगर हम अरेंज करेंगे तो वॉश बनेगा। Now grammar portion. In grammar portion we will do pronoun. What is pronoun? What are pronouns? Pronouns are words that are used in place of noun. For example, I, you, we, they, us, ours.
ठीक है। प्रोनाउंस कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नाउन्स अगर आप देखें तो हर दुनिया में नाम ही नाम है, ठीक है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, पहाड़, तारे, लड़के, लड़कियां, आदमी, मर्द, औरतें, जानवर, परिंदे, ये सारे नाउन्स हैं, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं तो स्पीच में बार बार ऐसा नहीं होता कि हम बार बार उस एक चीज़ की जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो उसी का नाम ही लेते रहें कि सारा अच्छी लड़की है, सारा स्कूल जाती है, सारा फर्स्ट पोजीशन लेती है, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम नाम लेते हैं उस चीज़ का, फिर जब उसके बारे में दोबारा बोलते हैं तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। जो नाउन की जगह वर्ड यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप। वी एंड आवर क्या है, प्रोनाउन है, हम और हमें, ठीक है। दे आर प्लांटिंग न्यू प्लांट्स इन देयर गार्डन। देयर उनके, ये भी प्रोनाउन है। हीरा कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन। हीरा कीप्स हर, ठीक है ना। हर जो क्या है, प्रोनाउन है, हीरा के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑलवेज बाय अ जूस इन अ कैन। इट कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। इट भी प्रोनाउन है। यस यू आर राइट। यू भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो क्या है, आई, वी, यू, दे, कैन, अस, आवर्स, देयर, हर, हिज, ये सारे प्रोनाउंस हैं। इनकी भी आगे काइंड्स हैं। स्टूडेंट्स कम ऑन पेज 62। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव नाउन। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट से निकला है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से जिस पर काम किया जाए, और पोजेसिव मलकियत, ठीक है ना, ऑनरशिप। इनको आप समझ लें। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अभी हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। पहले है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर ऑफन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं जो मोस्टली सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला, ठीक है ना। सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो जो बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में जो प्रोनाउंस यूज हो रहे होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली ये सब्जेक्ट को ही शो कर रहे होते हैं। मोस्टली सब्जेक्ट ही होता है इसमें, जैसे कि आई, इसमें देखें आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, आई वर्क इन अ बिग कंपनी। आई क्या है, स्टार्ट में यूज हो रहा है, और आई क्या है, सब्जेक्ट भी है। काम करने वाला कौन है, आई ही है, ओके। फिर है यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। यू क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, और फुटबॉल खेलना पसंद कौन करता है, यू ही करता है, इसलिए यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है ही लिव्स इन लाहौर। ही भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, काम करने वाले। सेंटेंस में जो काम करने वाला है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। शी वेंट टू वेकेशन लास्ट वीक। शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इट सीम्स हॉट टुडे। वी इंजॉय वॉचिंग कार्टून्स। दे आर गुड स्टूडेंट्स। तो ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में हैं। तो स्टार्ट में मतलब है कि ये सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मोस्टली सब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर ऑफन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हु और व्हाट वाज एक्टेड अपॉन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, मोस्टली सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो आपका होता है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था सेंटेंस का। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को शो कर रहे होते हैं, यानी किस पर काम है, किससे मुतल्लिक काम है, ठीक है ना। जैसे कि शी गेव मी अ बुक। शी क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। गेव क्या है, वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। गेव मी, शी गेव मी, उसने किसको दिया, मुझे, दी बुक,
सी है मी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ताहिर बॉट यू आर प्रेजेंट, ताहिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा यहाँ पे, ताहिर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है, ये अब नाउन है, प्रोनाउन नहीं है ताहिर। बॉट क्या है, वर्ब है, और यू क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। शी टोल्ड हिम द सीक्रेट, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फिर माहा आस्क्ड हर टू कम इनसाइड, हर भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये सारे देखें, निदा गेव इट टू मरियम, द टीचर टॉट अस नाउन, द कंपनी प्रोवाइडेड देम विद इंश्योरेंस, तो ये इट, अस, देम, हर, हिम, यू जो दरमियान में यूज़ हो रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। अब है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, इट शोज पोजेशन एंड ऑनरशिप, ठीक है, जो मलकियत जाहिर करें वो पोजेसिव नाउन है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, मेरी है, यानी इस बुक का मालिक मैं हूँ, तो माइन्स, योर्स, देयर्स, हीज, इट्स, अवर्स, हर्स, ये सारे क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउन है जो मलकियत जाहिर करते हैं। जैसे द कैट, दैट कैट ओवर देयर इज़ हेयर्स, हर्स, ओके, ठीक है, ये कैट इसकी है। दैट पोस्टर ऑन द वॉल इज़ अवर्स, अवर्स हमारा है, दीवार के ऊपर जो पोस्टर है हमारा, हमारा मलकियत शो कर रहा है। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल योर्स, ये सारी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, योर्स तुम्हारी हैं, ठीक है, जिम्मेदारियों का मालिक कौन है, तुम हो, ठीक है। द हाउस इज़ ऑन द कॉर्नर इज़ देयर, देयर, हिज, इट्स, ये सारे यहाँ पे देखें पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। हमारे पास अब प्रोनाउन से रिलेटेड एक्टिविटी है, यूज टू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस ईच इन योर सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक, ठीक है। अब हमने दो एग्जांपल्स के दो सेंटेंसेस बनाने हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को शो करें जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, और पोजेसिव प्रोनाउन को शो करें, ठीक है। ये हमने दो सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन के सेंटेंसेस हैं, दे आर गोइंग टू जू, वो चिड़ियाघर जा रहे हैं, दे क्या है, स्टार्ट में है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दूसरा है आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के सेंटेंसेस एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अस कैसे, शी गेव अस अ बैग। फिर मी, माई मदर बॉट मी अ ड्रेस, देखें यहाँ पे एज अस और मी एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो रहे हैं। फिर है पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स और हिज की, हम इसके साथ हम सेंटेंस बना लेते हैं, दिस कार इज़ योर्स, दिस शॉप इज़ हिज। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फाइल फेल मुताबिकत, ठीक है। इसका मतलब है, रीड मी को पहले पढ़ते हैं। अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है, जब काम करने वाला प्लूरल होगा तो वर्ब भी वहाँ पे प्लूरल यूज होगा, ठीक है। यू ऑलवेज एग्रीज विद आर बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल केसेस, ठीक है, यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। ये प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है, जो यू प्रोनाउन है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा, यू ही यूज होगा। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब चेंजेस विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, पर्सन जितने भी सब्जेक्ट में लोग होंगे, जितने तादाद होगी उसके लिहाज से जो है ना वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। प्रोनाउन जो है वो दोनों के लिए एक ही रहेगा। अब रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। डॉक्टर हारून इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर वॉशिंग देयर हैंड्स। स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, तो देखें आगे जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज हुआ, ठीक है ना। आर सिंगुलर, अगर स्टूडेंट एक होता तो इज यूज होता है यहाँ पे। अब चूंकि सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स प्लूरल हैं तो इसके साथ आर यूज हुआ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे जो है ये भी प्लूरल का प्रोनाउन है, ठीक है ना, वो इसमें ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए वर्ब जो है वो भी प्लूरल का यूज हुआ। फिर है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखें यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा इसलिए इसके साथ
आर यूज़ हो रहा है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आई जो है वो सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर एम यूज़ हुआ। अब एक्टिविटी है हमारे पास, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टिक द वर्ब्स दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। ठीक है, दिए गए जुमलों को पढ़ें और इस फेल को टिक करें जो फाइल के साथ ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, माई मदर डैश टू ईट वेजिटेबल्स। माई मदर क्या है, एक नाउन है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लाइक्स आएगा। ठीक है ना, जब सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मदर सिंगुलर नाउन है, ठीक है, इसलिए वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा किया जाता है, और वर्ब यहाँ पे लाइक है इसलिए इसके साथ हम एस यूज़ करेंगे और ये लाइक्स हो जाएगा। स्पोर्ट्स डैश अस हेल्दी। स्पोर्ट्स प्लूरल है, ठीक है ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। स्पोर्ट्स प्लूरल है तो हम इसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे, कीप यहाँ पे आएगा। फिर है द बर्ड, एक परिंदा है, इज आएगा यहाँ पे। द बर्ड इज चिरपिंग इन द नेस्ट। दे डैश नॉट वेस्ट देयर टाइम। दे डू नॉट, दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू आएगा। ठीक है, पाकिस्तान डैश ब्रेव पीपल। पाकिस्तानीज आर ब्रेव पीपल। ठीक है, पाकिस्तानीज है ये। लेट्स स्टार्ट पार्ट डी ऑफ दिस लेसन एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, writing. In writing, we will do narrative writing, narrative paragraph. What is a narrative paragraph? A narrative paragraph retells an event. It has a beginning, middle and ending. Narrative paragraph क्या होता है? जिसमें किसी वाक्य को बयान किया जाता है और इसका एक प्रॉपर स्टार्ट होता है, फिर मिडल और एंडिंग भी होती है। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। रीड द गिवन नरेटिव पैराग्राफ। नवीद वॉज नॉट फीलिंग वेल लास्ट नाइट। हिज ईयर वॉज aching. His mother told him he needed a doctor. In the morning, Naveed's mother took him to the hospital. The doctor examined Naveed's ear with the torch. He also checked his temperature by putting a temperature in his mouth. After a while, a doctor told Naveed's mother that he had fever too. He gave Naveed some medicines to take at home. Naveed thanked the doctor. He took these medicines and got well after a couple of days. इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। पिछली रात को नवीद बेहतर महसूस नहीं कर रहा था, इसका कान दर्द कर रहा था। इसकी वालदा ने उसे बताया कि इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। सुबह को वालदा जो है नवीद की उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने एक टॉर्च के साथ नवीद के कान का मुआयना किया और उसके साथ उसके मुंह में थर्मामीटर रखकर उसका दर्जा हरारत भी देखा। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने नवीद की वालदा को बताया कि इसे बुखार भी था। इसने नवीद के घर में खाने की चंद अद्वियात दे दी। नवीद ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और उसने ये अद्वियात लीं और कुछ दिनों के बाद जो है नवीद ठीक हो गया। अब इस पैराग्राफ में नवीद के बारे में नरेट किया गया है, बताया गया है नवीद के साथ क्या हुआ। ठीक है, राइट अ नरेटिव पैराग्राफ अबाउट एन मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ योर स्कूल लाइफ। अपनी स्कूल की ज़िंदगी में किसी यादगार वाक़े के मुतालिक एक बयानिया पैराग्राफ लिखें। ठीक है, नरेटिव पैराग्राफ को बयानिया, जिसमें आप बयान करते हैं किसी भी इवेंट को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, एक पैराग्राफ चलिए लिखते हैं। मेमोरीज आर द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। अ मैन ऑलवेज रिमेंबर्स द गुड डेज ऑफ हिज लाइफ। द स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। वंस देयर वॉज एन एग्जिबिशन इन माई स्कूल। आई कैनॉट फॉरगेट दैट डे. Everyone was working in group. I was also working with my friends. We made our model in the exhibition. Unexpectedly, we got first prize. That was very excited moment when our names were called to get prize. I cannot forget that day of my life. इसको थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यादें हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। एक शख्स अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिनों को हमेशा याद रखता है। स्कूल की ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी होती है। एक दफ़ा मेरे स्कूल में एक नुमाइश थी और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हर कोई ग्रुप में काम कर रहा था और मैं भी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में काम कर रहा था। मैंने एक मॉडल बनाया, ठीक है, नमूना बनाया। पूरा स्कूल बहुत सारी चीज़ें बना रहा था।
हमने नुमाइश में अपना नमूना पेश किया। गैर मुतवक्को तौर पर हमें पहला इनाम मिला और वो बहुत पुरजोश लम्हा था जब इनाम लेने के लिए हमारे नाम पुकारे गए। मैं अपनी ज़िंदगी का वो लम्हा कभी भी नहीं भूल सकता। ठीक है, अब हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ यू स्पेंड योर टाइम एट होम ड्यूरिंग द कोरोना वायरस लॉकडाउन। ओके, कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में आपने अपने घर में कैसे वक्त गुजारा। मेंशन एनी न्यू स्किल्स यू लर्न ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ठीक है, आप घर में ही रहे तो फारिग तो नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो क्या सीखा, क्या नई चीज़ें सीखी, महारतें सीखी, ये आपने बताना है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। I spent my time with my family. I helped my mother in home chores. I learned a lot about healthy food and personal hygiene. After learning about healthy food, I left over to eat junk food. The junk food is too much dangerous for our health. Through internet, I improved my English grammar. I have learned a skill of planning during this coronavirus lockdown. I took help from the internet and my mother also assisted me. I made a lot of painting and enjoyed a lot. इस तरह से आप जो है आपने क्या सीखा, क्या एक्टिविटीज़ की, आपने अपना लिख